عزیز طلبہ و طالبات، پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے قصیدے کے تعلق سے یہ بات کی تھی کہ قصیدہ اردو زبان میں عربی اور فارسی قصیدوں کی جو روایت رہی ہے اس سے فائدہ اٹھا کر کے اردو میں پروان چڑھا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قصیدہ عربی سے فارسی میں اور فارسی زبان سے متاثر ہو کر کے پھر اردو میں آیا ہے. اپنے مزاج کے اعتبار سے اور مادے کے اعتبار سے قصیدہ عربی زبان کا لفظ ہے. کبھی بھی جب ہم کسی صنف کے بارے میں یا کسی لفظ کی ہمہ جہت تشریح کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہم کو لفظی معنی اور اصطلاحی معنی دونوں پر نگاہ رکھنی پڑتی ہے. تو اسی طرح قصیدہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی لغات میں اس لفظ کے معنی دلدار گودا یا ستبر، سین تو بے رے، ستبر، یعنی اس کے معنی بھی گاڑھے مغز کے آتا ہے. اور اس پر بھی ایک بحث ہے کہ قصیدن اصل لفظ ہے یا قصیدتن. تو قصید یا قصیدہ قاف، صاد، یہ، دال اور تائے مدورہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی گاڑھے گودے یا دلدار گودے، دلدار کے معنی بھی گاڑھا اور غلیظ ہوتا ہے، اس کے معنی میں ہے. اب گاڑھا اور غلیظ کا لفظ قصیدے کے لیے کتنا مناسب ہے یہ ایک غور و فکر کی چیز ہے. ایک کتاب ہے تاریخ قصائد اردو، اس کے مصنف کا نام مولوی جلال الدین ہے. انہوں نے اپنی تصنیف میں قصیدے کا یہی معنی دیا ہے اور ساتھ میں لکھا ہے کہ چونکہ اس صنف شعری کے اندر مضامین عالی ہوتے ہیں، بلند مضامین ہوتے ہیں، تخیل کی فراوانی ہوتی ہے، تخیل کی پرواز کی قوت، تخیل کی قوت پرواز کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ شاعر کی فکر کس حد تک پرواز کر سکتی ہے اور مضامین کو وہ کس بلندی تک لے جا سکتا ہے، کس طرح سے نئے نئے مضامین وہ شامل کر سکتا ہے. اس کے لیے پرشکوہ الفاظ، بھاری بھرکم تراکیب کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی گنجائش ہوتی ہے. تو اس طرح سے قصیدے کی جو ساخت ہے اور قصیدے کا جو تقاضا ہے اور اس کا جو مزاج ہے اس میں مضامین کی بلندی، تخیل کی بلندی، تخیل کی فراوانی، بھاری بھرکم پرشکوہ شان و شوکت والے لفظوں کا استعمال اور اسی طرح کی بلند و بالا چیزوں کا تقاضا اس سے کیا جاتا ہے. غالباً یہی وجہ ہے کہ اس کو دلدار مغز سے تعبیر کیا گیا. جس طرح سے انسانی جسم میں مغز کی اور دماغ کی بہت اہمیت ہے، اسی طرح سے دیگر اصناف شعری کے مقابلے میں قصیدے کو برتری اور فوقیت حاصل ہے، اور وہ اس کے مضامین کی بلندی کی وجہ سے
اور اس کے نت نئے خیالات کی وجہ سے حاصل ہے۔ قصیدے کا ایک دوسرا معنی قصد اور ارادے سے بھی لیا گیا ہے، یعنی قصیدہ وہ شعری صنف ہے جو بالارادہ کہی گئی ہو۔ اس پر بھی ایک بحث ہے باقاعدہ شعر کے تعلق سے، کہ شعر اس موضوع اور مقفع کلام کو کہتے ہیں جو ارادتاً کہا گیا ہو، اور اسی وجہ سے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی زبان سے کچھ ایسے فقرے اور کچھ ایسے کلمات نکل آئے تھے جو ارادتاً نہیں تھے، ارادہ اور نیت شامل اس میں نہیں تھی، اس وجہ سے اس کو شعر نہیں کہا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلام موضوع اور کلام مقفع کو شعر اس وقت کہا جائے گا جب اس میں ارادہ شامل ہوگا۔ یہ ایک دوسری بحث ہے کہ کیا شعر کے لیے ارادہ اور نیت شامل ہے کہ نہیں ہے، لیکن قصیدے کی حد تک قصد اور ارادہ یقیناً شامل ہوتا ہے۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ قصیدہ اپنے مادے کے اعتبار سے دو لفظوں سے ماخوذ ہے، ایک قصید اور قصیدہ کے معنی میں جو گاڑھے اور غلیظ کے معنی میں، گودے کے معنی میں، مغز کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا وہی عام ارادہ اور نیت کہ شاعر کسی کی مدح، کسی کی ذم، کسی کی ہجو، کسی کی ستائش کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ قصیدے کے تعلق سے کہ جس طرح سے باقی صنف شعر کے لیے کچھ نہ کچھ ضابطے اور پیمانے اور اوزان مقرر ہیں، تو قصیدے میں کیا صورتحال ہے؟ تو غزل کی ایک حیت ہے، غزل کا ایک پیمانہ ہے، اوزان ہے اس کے لیے۔ بعض نقادوں نے غزل کے لیے اشعار کی تعداد مقرر کر رکھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ 5 سے کم نہ ہو۔ زیادہ کے لیے عام طور سے 21، 23، 25، 27 وغیرہ کی بھی کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ جب ہم قصیدوں کے اس سائز کے بارے میں، اس حجم کے بارے میں دیکھتے ہیں، تو کیا عربی زبان کے نقاد، کیا فارسی زبان کے نقاد، اور کیا اردو زبان کے، سبھوں نے اس کی تعداد مقرر کرنے کی، اور یعنی قصیدے کے اشعار کو پابند کرنے کا ایک کام کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ قصیدہ غزل کی حیت میں ہوتا ہے، شرط یہ ہے کہ 7 اشعار سے زیادہ ہو۔ ابن رشیق عربی کا ایک عالم تھا، اس نے یہ بات کہی۔ پھر اسی ابن رشیق نے ایک دوسرا بیان دیا کہ قصیدہ اس کو کہتے ہیں جو جس کا پہلا شعر ہم ردیف و ہم قافیہ ہو، اس کے دونوں مصرے، اور ان کے اشعار کی تعداد 7 اور 10 یا اس سے متجاوز ہو۔ یہی صورتحال فارسی میں بھی آئی، کسی نے 15، کسی نے 21، کسی نے 23، اور کچھ لوگوں نے اس کو بالکل غیر پابند کر دیا ہے۔ لیکن اکثریت کا اتفاق ہے، جمہور نہیں کہہ سکتے، اکثریت کا اتفاق ہے کہ قصیدے کے اشعار کی تعداد 21 ہونا چاہیے، 21 سے کم نہیں ہونا چاہیے، یعنی 2-4 اشعار، 10 اشعار، 12 اشعار پر مشتمل کو قصیدہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو ہوئی حجم کے اعتبار سے ایک ظاہری حد بندی، اس بات کے اعتراف کے ساتھ کہ قصیدے کے لیے اشعار کی تعداد اب بھی مقرر نہیں ہے۔ وہ کیسے ہم پتہ لگائیں گے؟ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ ہم غالب کے قصیدے، ہم نصرتی کے قصیدے، سودا کے قصیدے، انشاء، جرات، مصحفی، جن لوگوں نے بھی قصیدے لکھے ہیں، محسن کاکوروی، جن لوگوں نے بھی قصیدے لکھے ہیں اور جو قصیدوں کا بڑا نام ہے، ان کے قصائد کا ایک سرسری سا جائزہ لے لیں، اور پھر ہم کوئی نتیجہ نکالیں کہ تعداد پر عمل کس حد تک ہو سکا ہے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ
तादाद 7, 10, 15, 21, 20, 40, 50 सब बेमानी है। कसीदे में उसके अज्जाए तरकीबी ज़्यादा अहमियत रखते हैं, कसीदे के अज्जाए तरकीबी ज़्यादा अहमियत रखते हैं बनिस्बत तादाद के। अब हम मुख्तसरन कसीदे की तारीफ़ भी का भी थोड़ा सा ज़िक्र करना चाहेंगे। कसीदा एक ऐसी शेरी सिन्फ़ है जिसका मौजू के एतबार से दायरा बहुत वसी है। इसमें मदह भी होती है, सताइश भी होती है और किसी किसी की हिज्व भी होती है। आम तौर पर कसीदा से हम लोग मदहिया शायरी मुराद ले लेते हैं, ये दुरुस्त नहीं है। कसीदे के लिए एक हैयत मुकर्रर है और वो मुकर्रर हैयत गज़ल वाली है, यानी मतला जिसके दोनों मिसरे हम रदीफ़ व हम काफ़िया हों, और उसके बाद मिसरे सानी मुरद्दफ़ और मुक़फ़्फ़ा होगा, इसका तकाज़ा किया जाता है। कसीदों में एक शक्ल यह भी देखने को मिली है कि चंद अशार के बाद 10-20 अशार के बाद एक दूसरा मतला शुरू होता है, शायर कहता है, और फिर उसका रदीफ़ काफ़िया चलता है, फिर एक मतला कहता है। यानी ये कसीदे में मतले अव्वल के अलावा मतले सानी, मतले सालिस हो सकते हैं, होते हैं, और वो दरमियान में होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहला, दूसरा, तीसरा शेर ही हो। जब आप लोग असल मतन पढ़ेंगे कसीदे का, और जब बहादुर शाह ज़फ़र या सौदा के कसीदों का एक जायज़ा लेंगे, तो ये बात खुद ब खुद साबित हो जाएगी और आप लोग उसको एक तरह से देख भी सकेंगे और समझ भी सकेंगे कि कसीदों में मतले की तादाद एक से ज़्यादा हो सकती है, कई हो सकती है, मुतअद्दिद हो सकती है, हुई है। जहाँ तक कसीदे के अज्जाए तरकीब, एक और बात रही जा रही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये कतन ज़रूरी नहीं है कि कोई कसीदा सिर्फ़ तारीफ़ पर मुश्तमिल हो। कसीदे की शनाख्त दो सतहों पर की जा सकती है, एक ज़ाहिरी सतह पर और दूसरी मौजू के एतबार से, है ना। मौजू के एतबार से हर वो नज़्म जिसमें किसी की तारीफ़ की गई हो, कसीदा नहीं कही जा सकती। हालांकि हालांकि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने उस्ताद शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की एक मदहिया नज़्म को कसीदा कहा है। उस पर हमारे नक्कादों ने अपनी राय भी दी है और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि कसीदा के लिए अरूज़ी शर्त है। अरूज़ी शर्त का मतलब कि वही गज़ल वाली हैयत, है ना। ज़हे निशात अगर कीजिए उसे तहरीर, आया हो खामा से तहरीर नगमा जाए शरीर। मतले का शेर है, दोनों मिसरों में रदीफ़ और काफ़िया है। सौदा का कसीदा बहुत मशहूर है। अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, दावा न करे ये कि मेरे मुँह में ज़बां है। मैं हज़रत सौदा को सुना बोलते यारो, अल्लाह रे क्या नज़्म बयां है। सौदा ही का एक और है कि फज्र होते जो गई आज मेरी आँख छपक, दी वही आँख खुशी ने दर दिल पर दस्तक। पूछा तू कौन है, बोला कि मैं वो हूँ गाफिल, न लगे शौक़ में जिसके कबो शायक की पलक। ठीक है ना। तो इस तरह से गज़ल की हैयत में कसीदा लिखा जाता है, ये तय हो गया है। अब ये सवाल है कि क्या कसीदे में सिर्फ़ तारीफ़ होगी या किसी की हिज्व भी होगी। तो कसीदा एक सिन्फ़ की हैसियत से, एक सिन्फ़ शायरी की हैसियत से मदह को भी शामिल करता है और उसमें ज़म का और हिज्व का भी पहलू शामिल होता है। दोनों कसीदे के दायरे में दोनों अनासिर शामिल होते हैं, मदह भी और ज़म भी। उसकी मिसाल देखिए, गालिब का कसीदा बहुत मशहूर है। हाँ महे नौ सुने हम उसका नाम, जिसको तू झुक के कर रहा है सलाम। बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ में किया गया है। आगे जब आप पढ़ेंगे असल मतन,
तो उसका अंदाज़ा होगा। लेकिन कसीदे के सबसे बड़े उस्ताद मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा हैं। उन्होंने जहाँ बहुत सारे कसीदे तारीफ़ के लिए लिखे हैं, वहीं एक उनकी बड़ी मशहूर नज़्म है, नज़्म मैं कह रहा हूँ, नज़्म है और उसका उन्वान है कसीदा दर शहर आशोब। यानी शहर आशोब, शहर आशोब उस नज़्म को कहते हैं जिसमें किसी शहर की बर्बादी, किसी शहर की बदनज़मी और उसकी ज़बूं हाली का और उसके इंतज़ाम व इंसराम के पटरी से उतर जाने का ज़िक्र किया जाता है। बदकिस्मती से आजकल हमारे मुआशरे की सूरत हाल कुछ ऐसी है कि ये शहर आशोब लिखने के लिए बहुत मुनासिब तसव्वुर की जा सकती है, ये आइडियल है, ठीक है ना। तो इस तरह से शहर आशोब एक ऐसी नज़्म है, एक ऐसी शायरी है जिसमें ये इन इन अनासिर को शामिल किया जाता है। जब सौदा का वो कसीदा शहर आशोब आप पढ़ेंगे तो उसमें किस तरह से कारोबारी, किस तरह से अहले इल्म, किस तरह से शेख, किस तरह से पीर, किस तरह से मुरीद, किस तरह से फ़ौजी, किस तरह से मुलाजिम, किस तरह से ताजिर, किस तरह से मुतसद्दी, किस तरह से उम्माल बेसरो सामानी की हालत में हैं और आजमाइश और इम्तिहान की हालत में हैं, सब की दर्द भरी दास्तान सौदा ने उसमें बयान की है। और इसी तरह से कसीदा कसीदा मुसम्मा ब तज़हीक रोज़गार के नाम से मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने एक कसीदा लिखा जिसमें ज़माने के और हुकूमत के निज़ाम के दरहम बरहम हो जाने की का एक तरह से मरसिया उन्होंने लिखा है। बहुत दर्द अंगेज़ और मुअस्सिर शायरी है वो आप लोगों को अगरचे निसाब में शामिल नहीं है लेकिन उसको पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि सौदा जो कसीदे के बादशाह हैं वो जब हिज्व गोई पर आमादा होते हैं तो उनकी ज़बान में तंज़ो मज़ा और उनकी ज़बान में किस तरह की तेज़ी और किस तरह की काट पैदा हो जाती है और किस तरह के तंज़ के तीर वो चलाते हैं, वो देखने से ताल्लुक़ रखती है, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है। तो ये बात वाज़ेह हो गई कि कसीदे का जो सबसे बड़ा शायर है उसने तारीफ़ में भी नज़में लिखी हैं और उसको कसीदा कहा है और हिज्व गोई भी जब की है, ख़ास शहर आशोब की सूरत में, ख़ा तज़हीक रोज़गार की सूरत में जिसमें एक घोड़े की दास्तान बयान की है और उसको फ़ौजी निज़ाम के कमज़ोर हो जाने और फ़ौजी निज़ाम के दरहम बरहम हो जाने का ज़िक्र किया है। तो अलग़रज़ मैं अपनी बात को इस तरह से समेटने की कोशिश करना चाहता हूँ कि कसीदा एक ऐसी शेरी सिन्फ़ है जिसके लिए एक हैत मुक़र्रर है। मौज़ू मदह और ज़म के बीच का है, यानी मदह भी होती है और ज़म का भी पहलू रहता है, सताइश भी होती है और हिज्व गोई का अंदाज़ भी कसीदा उसका हामिल होता है, वो उसको शामिल करता है। अब हम लोग आते हैं कि कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी क्या हैं, किन किन चीज़ों से कसीदा मिल कर के बनता है। जब हम लोग मरसिये के बारे में पढ़ रहे थे तो मरसिये के अज्ज़ाए तरकीबी का ज़िक्र हुआ था। चेहरा, सरापा, आमद से लेकर के बैन तक 8 अज्ज़ा थे उसमें और हम लोग इस नतीजे पर पहुँचे थे उसमें कि ये ज़रूरी नहीं कि ये तमाम अनासिर और तमाम अज्ज़ा हर मरसिये में शामिल हों, हर मरसिये में मौजूद हों। इसी तरह से कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी का मामला है लेकिन ज़रा कम। इसमें महज़ 4 अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं जिनको हम लोग तशबीब नंबर 1, नंबर 2 गुरेज़, नंबर 3 मदह और नंबर 4 अर्ज़े दुआ या हुस्न तलब। ये 4 हैं। कुछ किताबों में आपको अर्ज़े दुआ और हुस्न तलब अलग अलग मिल सकता है लेकिन आम तौर पर कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी में यही 4 अनासिर शामिल होते हैं, तशबीब, गुरेज़, मदह और दुआ या हुस्न तलब।
तशबीब के बारे में आप लोगों से बात हुई थी कि तशबीब किसको कहते हैं। मैं उस बात को एक मर्तबा फिर दोहरा देना चाहता हूँ कि तशबीब में शायर को आज़ादी होती है इस बात की कि वो उसमें अपने अपने तख़य्युल के घोड़े को किस हद तक और कहाँ तक दौड़ाता है, उसकी जिद्दत बयान कितनी मज़बूत है, और इस तरीक़े पर वो कसीदे के अंदर तशबीब के अशार बयान करता है कि सुनने वाला मुतवज्जह हो जाए और उसकी सारी तवज्जो मबजूल हो जाए इस बात की तरफ कि असल कसीदा अब शुरू होने वाला है, सुनने वाला चौंक जाए। आम तौर पर कसीदे में तशबीब के तहत शोरा ने जिस तरह के अनासिर को समेटने की कोशिश की है, उसमें तकरीबन हर तरह के अनासिर शामिल हैं। अपनी इल्मियत और अपनी काबिलियत के एतबार से शायर को इस बात की पूरी पूरी गुंजाइश रहती है कि वो उसमें अपने कमाल फ़न का जौहर दिखा सके। चुनांचे शायर कभी उसमें नसीहतें करने लगता है, कभी कभी तशबीब के अशार में सब्र व क़नाअत की तलक़ीन करता है, कभी मौसम बहार का गीत गाता है, और कभी अपने किसी मुआसिर शायर का मजाक उड़ाया करता है। गरज ये कि तशबीब में बहारिया तशबीबें भी लिखी गई हैं। फ़ारसी का एक बड़ा मशहूर शायर था क़ानी, उसका एक कसीदा बहुत मशहूर हुआ था। नसीम खुल्द मी वज़द मगर ज़जूए बारहा के बूए मुश्क मी देहद हवाए मरगज़ा रहा फराज ख्वाब खिश्तहा दमीदा सब्ज़ किश्तहा चिकिश्तहा बहिश्तहा नदह नसद हज़ारहा। तो ये बहारिया तशबीब कही जाएगी। लेकिन तशबीब का जो बुनियादी मानी है, शबाब की बातें करना, उसकी रियायत से बहुत सारे शोरा ने तशबीब में हुस्न व इश्क का या इश्क की मुख्तलिफ कैफियतों का बयान किया है। मिसाल के तौर पर सौदा का अभी वो जो मैंने मिसरा पढ़ा था कि फ़ज्र होते जो गई आज मेरी आँख झपक दी वहीं आके खुशी ने दर दिल पर दस्तक। तो खुशी दिल के दरवाजे पर दस्तक देने आती है। ज़ाहिर है कि ये एक तरह की ख्याल आराई है, ये एक तरह का एहसास है ना। खुशी किस तरह से दरवाजे पर दस्तक देने आई है। ज़ाहिर है कि कसीदे के लिए एक बेहतर माहौल तैयार करने की शायर कोशिश कर रहा है। तो गोया तशबीह में हर तरह के मज़ामीन की गुंजाइश होती है, हो सकती है। और जब आप मुख्तलिफ़ कसीदों की तशबीब के अशार देखेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि तशबीब दर हकीकत किसको कहते हैं या तशबीब का दायरा कितना वसी है। सौदा का वो शेर कि अब सामने मेरे जो कोई पीरो जवां है, दावा न करे ये कि मेरे मुँह में ज़बां है। मैं हज़रत सौदा को सुना बोलते यारो, अल्लाह रे क्या नज़्म बयां है। इतना मैं किया अर्ज़ के फरमाई ये हज़रत, आराम से कटने की तरह कोई भी यहाँ है। सुनकर ये लगे कहने की खामोशी रह जा, इस अम्र में कासिर तो फरिश्ता की ज़बां है। तो सौदा साहब ने इन दो चार अशार में अपनी शायरी की और और अपनी अपनी ज़बानदानी का दावा किया है और अपनी फ़साहत व बलागत का ज़िक्र किया है। यानी एक तरह से इसमें उन्होंने तअल्ली से काम लिया है, और तअल्ली शेर का हुस्न है, ऐब नहीं है। तो गरज ये कि तशबीब का दायरा बेहद वसी है, उसमें हर तरह के मज़ामीन और हर तरह के ख़यालात के नज़्म करने की गुंजाइश है। दूसरा जुज़ कसीदे का गुरेज़ कहलाता है। गुरेज़ बहुत ही अबूरी और आर्जी मरहला होता है। तशबीब एक अहम उन्सुर है तमहीद का, और मध एक दूसरा उन्सुर है। असल मध उसी से होती है।
मध की पुष्ट पर इनाम व इकराम भी एक बड़ा जज्बा होता है, एक बड़ी ख्वाहिश होती है इनाम व इकराम की। अरब के कसीदों को जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इनाम व इकराम का वो जज्बा नहीं है, लेकिन जब अरबी शायरी का जो अखीर दौर था बनु अब्बास का, उसमें कसीदा गोई जो है दुनियावी जाहो हशमत के हुसूल का एक बहुत मजबूत वसीला बन गई थी, तो वहाँ पर फिर शायरी हकीकत से दूर जा पड़ी। वो असरात जब फ़ारसी शायरी में आए तो फ़ारसी में, और वहाँ से होते हुए जब उर्दू शायरी में आए तो उर्दू शायरी में भी मध का वही अंदाज रहा। आसफुद्दौला ने मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने आसफुद्दौला की भी तारीफ़ की और उसके वालिद शुजाउद्दौला की भी तारीफ़ की। शुजाउद्दौला तो जरी और जंग आज़मा शख्स था, अगरचे अंग्रेज़ों के मुकाबले वो जंग हार गया, लेकिन उसने अंग्रेज़ों की मदद से हाफिज़ रहमत ख़ां रोहिला सरदार को शिकस्त दी थी। तो शुजाउद्दौला मर्द मैदान था और उनका बेटा आसफुद्दौला ऐशो इशरत का दिलदादा नवाब था। उसकी फैयाजी और सखावत के किस्से बहुत मशहूर हैं, वाक़या कहना चाहिए बहुत मशहूर हैं, लेकिन तलवार आसफुद्दौला ने उठाई नहीं। लेकिन जब सौदा कसीदा लिखते हैं तो दोनों के लिए इस तरह की खसूसियात और इस तरह की सिफ़ात का इस्तेमाल करते हैं कि दोनों हम पल्ला नज़र आते हैं। ठीक है ना। कहना ये चाह रहा था कि गुरेज एक दूसरा उन्सुर है जिसका दायरा बहुत महदूद होता है और जो दर हकीकत एक बहुत छोटा सा पुल होता है जिसके सहारे शायर तशबीह बयान कर रहा है। तशबीह में तलकीन हो सकती है सब्र की, मौसम बहार का बयान हो सकता है, किसी की बुराई हो सकती है, अपनी बड़ाई हो सकती है, या दुनिया जहान का कोई भी मौजू उसमें समा सकता है। असल मकसद तो शायर की तारीफ, ममदूह की तारीफ है। तो बहार के तशबीह से या हुस्न इश्क की तशबीह से या तशबीह की मंजिल से शायर किस तरह से मध की मंजिल में आए, उसके लिए शायर कोई ना कोई बहाना तलाश करता है। उसी कामयाब बहाने की तलाश का नाम गुरेज है। गुरेज का मतलब भागना। शायर तशबीब की मंजिल से फरार इख्तियार करते हुए चलते हुए, है ना, यहाँ पर शायर की इल्मियत और शायर के कमाल फ़न का बड़ा सख्त इम्तिहान होता है। वहाँ से दाखिल होते हुए, वहाँ से चलते हुए वो मध के मैदान में या मध के दायरे में कामयाबी के साथ दाखिल होना चाहता है। बहादुर शाह ज़फ़र का एक बड़ा मशहूर कसीदा गालिब ने लिखा था, और तशबीब के अशार के बाद कुछ अपना ज़िक्र किया और आखिर में कहते हैं, क्या कम है ये शरफ़ कि ज़फ़र का ग़ुलाम हूँ, क्या कम है ये शरफ़ कि ज़फ़र का ग़ुलाम हूँ, माना कि जाहो मनसबो सरवत नहीं मुझे। यानी ज़फ़र का ग़ुलाम कह करके शायर ने अपने आप को बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ के लिए रास्ता हमवार कर लिया। ये गुरेज़ है। इसका मतलब ये हुआ कि गुरेज़ एक दो चंद अशार का एक ऐसा मजमुआ जो तशबीह से रिश्ता नहीं रखता, जिसका बराह रास्त ताल्लुक़ मध से नहीं होता, मगर इन दोनों मुख्तलिफ अनासिर को, मुख्तलिफ अज्जा को जोड़ने का काम करती है गुरेज़। मध हो गई। अब मध का जो जुज़ है, मध का जो उन्सुर है, उसके अंदर बड़ी उसरत है, और यहाँ शायर की क़ुव्वत तख़य्युल का और शायर के फ़िक्र-ओ-फ़न का असल इम्तिहान यही होता है। ये बात भी कही गई है, मौलाना शिबली ने शेरुल अजम में बहुत तफ़सील से लिखा है कि कसीदे से बड़े बड़े काम लिए जा सकते हैं। मध उनकी की जानी चाहिए जो मध के काबिल हो। मध में जो कुछ भी कहा जाए सच कहा जाए, या मदहिया औसाफ इस तरह से बयान किए जाएं कि हमारे जज्बात को तहरीक हो। लेकिन सच्ची बात यह है कि फ़ारसी कसीदों में ये चीज़ें कभी पूरी तरह से जमा नहीं हो सकी।
जितने भी शायर हैं फ़ारसी के, उर्फ़ी हुए, नज़ीरी हुए, फैज़ी हुए, सब के यहाँ वही तसन्नो, वही तकल्लुफ़, वही दूर अज़कार तशबीहात व इस्तिआरात, वही सिफ़ात व औसाफ़ जो ममदूह की अ, ममदूह की शान के ख़िलाफ़ और उसकी शख्सियत के बिल्कुल बरअक्स, है ना। कसायद लिखे गए तो उन मार्कों का ज़िक्र नहीं किया, सखावत और फैयाज़ी और दरियादिली का ज़िक्र ज़रूर किया। उसकी वजह ये है कि ये आम तौर से शख्सी हुकूमत में इसकी बड़ी अहमियत रही है। हाँ, मार्कों में तो दोनों सूरतें रहती हैं, फ़तह व शिकस्त दोनों से सामना होता है, लेकिन एक दूसरा मकसद भी इसकी पुष्ट पर है कि सखावत की, दरियादिली की और फैयाज़ी की और रहमदिली की तारीफ़ करके शायर दर हकीकत हुसूल ज़र के लिए एक रास्ता भी हमवार करना चाहता था। मकसद बरारी जिसको कहते हैं वो भी एक बुनियादी चीज़ था। अरबी कसीदों में अलबत्ता ये शान मौजूद रही है कि वो हकीकत से करीब रहे हैं बहुत हद तक, और कम से कम जाहिली दौर के जो कसीदे लिखे गए थे उसमें हकीकत का रंग बहुत गहरा था। उर्दू और फ़ारसी कसीदों में बहुत ज़्यादा मुबालगे से काम लिया गया। अ, फिर भी कसीदे में जिन चीज़ों का ख़ास तौर से ज़िक्र आता है, जब आप कसीदा पढ़ेंगे तो अंदाज़ा लगेगा, लेकिन ममदूह की शराफ़त का, उसकी निजाबत का, उसके जाहो हशमत का, उसके दरबार की शान व शौकत का, उसकी ईमानदारी का, उसकी सदाकत का, उसकी नेकी और बुज़ुर्गी का, उसके अदल व इंसाफ़ का, उसकी शुजाअत व बहादुरी का बहुत मुबालगे के साथ ज़िक्र किया गया है। उसके घोड़े का, उसके घोड़े की रफ्तार का, उसके हाथी का और हाथी की मजबूती का, उसके लाओ लश्कर का, उसकी नफरी तादाद का, उसके भारी भरकम लश्कर का। गर्ज़े के मिसाल के तौर पर अभी आसिफ़ुद्दौला की बात हो रही थी, सौदा ने उनकी शान में कसीदा कहे, दोनों की यानी बाप और बेटे दोनों शख्सियत के एतबार से बोदुल मशरिक़ैन हैं, लेकिन दोनों के मफ़हूम में, सौदा के कसीदों की रोशनी में दोनों के मफ़हूम में कोई नुमायाँ फ़र्क नहीं मालूम होता है ना। कहने का ये मतलब है कि मुबालगे को अपनी इंतहा तक ले जाता है शायर, और उसकी पुश्त पर वो जज्बा कार फरमा रहता है जिस इरादे से और जिस नीयत से शायर ने वो कसीदा लिखा था। आखिरी उन्सुर उसका दुआ या हुस्न तलब का होता है। इसमें कई मरतबा आप देखेंगे कि बुज़ुर्गान दीन से मदद मांगी जाती है। कई बार अपने ममदूह से शायर हुस्न तलब से काम लेते हुए कुछ मांगने की कोशिश करता है। बाज़ कसीदों में ममदूह की सेहत और उसके इक़बाल की सरबुलंदी का ज़िक्र होता है। कहने का ये मतलब है कि ये जो आखिरी उन्सुर होता है, ये हुस्न तलब और दुआ का होता है। उसमें शायर अपने लिए कुछ माँगता है, बादशाह के लिए खुदा से कुछ माँगता है, और इस तरह से दुआ देते हुए इस वक्त याद नहीं है, बहादुर शाह ज़फ़र की तारीफ़ में शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का कसीदा है कि मैं तवीलुल उमरी की दुआ मांगता हूँ, मैं कसरत फ़ौज की दुआ मांगता हूँ, मैं सिपाह कसीर की दुआ मांगता हूँ, मैं उम्र तवील की दुआ मांगता हूँ। तो इस तरह से शायर अल्लाह ताला से भी मांगता है, और बसा औक़ात अपने ममदूह से भी वो हुस्न तलब कर बैठता है। तो इस तरह से कसीदे के ये बुनियादी अज्ज़ा और अनासिर हैं: तशबीब, गुरेज़, मदह, दुआ या हुस्न तलब। तो आज इतना ही, हमारी बात यहाँ मुकम्मल होती है। आगे जब हम गुफ्तगू करेंगे तो उर्दू कसीदे के आगाज़ व इर्तिक़ा पर गुफ्तगू करेंगे। 1 मिनट का वक्त बाकी रह गया है, अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो कर सकता है।